Hello everyone, this is Abhishek Kumar Singh. Welcomes you all in our YouTube learning channel, DIKSHA. Guys, I have some good news for you. But before it, I would like to thank you all for all your love and support in all my previous videos. As you know, this is a very new channel, but still, मेरी लास्ट वीडियो बॉडी लैंग्वेज के पार्ट 1 आप सब ने इतना पसंद किया कि वो YouTube पे रैंक करने लगी. And the credit goes to all my viewers. Seriously, love you all. By the way, for those who had not seen my previous videos, for them, I have provided the links of all my videos in description. Go check out, but first, finish this one. Well, उम्मीद है सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा. And those who are new to my channel, first subscribe it. Don't miss any updates. चलिए अब बिना देर किए लेट्स बिगिन. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने के 8 टिप्स दिए थे. रिमेनिंग 8 टिप्स आज मैं आपको बताऊंगा. सो स्टार्टिंग विद टिप नंबर 9, लीन इन. अब आपको ये नहीं पता होगा बहुत लोगों को कि लीन क्या होता है. लीन का मतलब होता है कि थोड़ा आगे की तरफ झुकना. आप अपने एक ऐसे कन्वर्सेशन को याद कीजिए जिसमें आप और आपका कन्वर्सेशन पार्टनर दोनों ही किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हो जिसको लेकर आप दोनों ही enthusiastic मींस उत्साहित. You will probably notice you both are lively and leaning in towards each other. Basically, जब आप लीन करते हैं मतलब थोड़ा झुकते हैं तो सामने वाला की माइंड उसे ये सिग्नल देती है that you came into their comfortable zone. अब इससे आपका ये फायदा होता है कि आपका पार्टनर आपसे बात करने में और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है या फिर और भी ज्यादा कह सकते कंफर्टेबल फील करेगा. सो मूविंग टू द टिप नंबर 10, माइंड योर फिजेटिंग. फिजेटिंग मींस बेचैनी, चुलबुलाहट. अब इसको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाइएगा. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन एज वेल. आपने ऐसे लोगों को नोटिस जरूर किया होगा जो कभी भी स्थिर नहीं रहते, स्टेबल नहीं रहते. लाइक आप उनसे बात कर रहे हो और वो हर दूसरे मिनट कभी अपने मोबाइल को चेक कर रहे हैं, कभी अपनी की रिंग को घुमा रहे हैं, कभी अपनी बालों को सहला रहे हैं और भी वगैरह वगैरह की हरकत करते रहेंगे. अगर आपकी भी ऐसी हैबिट है तो इतना याद रखिए, इट्स अ साइन ऑफ नर्वसनेस. साथ ही साथ इट्स अ डिस्ट्रैक्शन फॉर अदर्स. इफ यू वांट टू इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज, जस्ट स्टॉप दिस हैबिट्स. सो नाउ मूविंग टू टिप नंबर 11, डोंट टिल्ट योर हेड too much. Although a slight tilt of your head can indicate interest, but too much of a head tilt indicates submissiveness. See, improving body language ultimately aims at developing your personality, right? But when you are always submissive to others, तो आपकी personality ना हमेशा एक follower की बन के रह जाएगी. वो कभी भी एक leader की नहीं बन पाएगी. And always remember this statement: submissiveness should never be allowed to outstretch dignity. So now let's move to tip number 12. Don't end sentences with upswings. अब आप लोग में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बॉडी लैंग्वेज नहीं है, because here we use sentences to communicate. यहाँ बॉडी की कहाँ इस्तेमाल हुई? Yes, my dear friends. Intonation means आवाज का उतार चढ़ाव is not a body language. But इसके वजह से जो सबकॉन्शियस मैसेज हम अपने लिसनर के माइंड में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, due to this only it plays a very important role in body language. See, ending your sentences like questions indicates a lack of confidence in what you are saying. इससे आपके कॉन्वर्सेशन पार्टनर का भी कॉन्फिडेंस घटेगा आपको लेकर, अब जो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को ग्रो नहीं होने देगा. Hence, avoid upswing. So, tip number 13, go for a firm or matching handshake. We all heard it. First impression is the last impression. A firm handshake sets the tone and the perception of your abilities. So impart a strong first impression on conversation partner by offering your hand and looking them in the eye when offering a greeting or introducing yourself. Guys, you have no idea. आपकी handshake tells everything about yourself. Everything means everything. अब इसकी क्या अहमियत है आप इस स्टेटमेंट से लगा ही सकते हैं कि a Fortune 500 CEO once said that अगर उसे दो कैंडिडेट्स विथ सिमिलर क्वालिफिकेशंस के बीच में
चूज करना पड़े, then he will give the position to the candidate with the better handshake. अब एक impact creating handshake कैसे करें, तो इसके लिए भी आपको एक टिप देता हूँ. Just tend to try to match your acquaintances handshake like mirroring. मतलब सामने वाला आपके साथ जिस तरीके से हाथ मिला रहा है, हैंडशेक कर रहा है, आप भी उस तरह का उसके स्टाइल को कॉपी कीजिए. इससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन डेवलप होगा. अब कनेक्शन मीन्स अपनापन डेवलप होगा. अगर ये कनेक्शन डेवलप हो गया एक बार, तो सामने वाला जो है वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो जाएगा. टिप नंबर 14, नो वेयर योर हैंड्स आर. सी, होल्डिंग योर आर्म्स बिहाइंड योर बैक विथ योर हैंड्स क्लास्प्ड इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस. यस, इट्स गुड. ये काफी अच्छा रेमेडी भी है उन लोगों के लिए. अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनकी हाथ हमेशा चलती रहती है, जिससे आपकी कॉन्वर्सेशन भी काफी डिस्ट्रैक्ट होती है. तो अगर यू आर ऑल्सो ए फिजेटर, तो आपके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी सजेशन है. आप इस पोस्चर को फॉलो कर सकते हैं whenever you are conversating. Even this is a great for public speaking also. Public speaking means when you are representing more than a single person. तो that's it, that is public speaking. अगर आप पब्लिक के सामने स्पीक कर रहे हो तो तब भी आप इस पोस्चर को फॉलो कर सकते हैं. इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो है काफी अट्रैक्टिव एंड कॉन्फिडेंट लगेगी. एंड इसी के साथ साथ आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बात करने के समय अपने हाथों को अपने पॉकेट्स में रखते हैं. तो भले ही आपको हाथों को पॉकेट में रखना कंफर्टेबल लगता हो, बट इट इंडिकेट्स बोर्डम और ओवर कॉन्फिडेंस. सो इट्स माय पर्सनल सजेशन, डोंट कीप योर हैंड्स इन योर पॉकेट्स while you are communicating. Okay, don't look an overconfident person. So moving to tip number 15, sit in an engaging position. See, sitting directly opposite somebody indicates confrontation. अगर आप अपने वर्क प्लेस में हैं या कहीं इंटरव्यू में हैं, then it's okay. Otherwise, always try to sit at a 45-degree angle. अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, but friends, अगर साइकोलॉजी की माने तो this provides comfort, space and still allows you to mirror and engage. Hence, if possible, follow this step positively. So, well. Finally, now it's time to discuss tip number 16. So, tip number 16 is relax. Friend, इतने सारे टिप्स एंड मेथड्स को डिस्कस करने के बाद अब मुझे बिलीव है यू गाइज आर प्रोबेबली हाइपर अवेयर ऑफ एवरीथिंग कि अब आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं अपने बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए. सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स. गाइज, स्टार्टिंग में इतने सारे बॉडी लैंग्वेज टिप्स को फॉलो करने में आपको थोड़ा अननेचुरल सा लगेगा. सो डोंट फोर्स इट टू मच. बस थोड़ा अवेयरनेस और प्रैक्टिस के साथ इन टेक्निक्स को धीरे धीरे अप्लाई कीजिए एंड आप पाएंगे कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज के मास्टर बन चुके हैं. फिर क्या, अ टाइम विल कम जब आप अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर सकेंगे कि कितना आपको वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करना है और कितना बॉडी के थ्रू. तो आज के लिए बस इतना ही. अब चलिए मैं आपको वो गुड न्यूज बता दूं जिसके लिए आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. गुरु दीक्षा is introducing a very demanding basic to advanced level Python online training course in an unexpected affordable price. As you can see here, we have reduced the price by straight 70%. इतना ही नहीं, फर्स्ट 50 रजिस्टर करने वालों को एक्स्ट्रा 30% ऑफ भी मिलने वाली है. So don't miss the opportunity and just call immediately to the given number to enroll your seat. अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए तो डोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स. सो टिल देन, दिस इज अभिषेक कुमार सिंह signing off for today. Thanks for watching. Bye bye.